Hello, ninth class student. Once again, welcome to all by UP Singh. Today, I am going to teach you a new topic, that is lines and angles. Before knowing some problem related to this chapter, you have to know first of all some terminology related to lines and angle. So let us see one by one. Here the first term is adjacent angles. What is adjacent angle? First of all you have to know. Look at here. Two angles are said to be adjacent if first a common vertex, second a common arms, third two angles opposite to common arm. It will be more clear by figure. So look at figure. Here the figure for definition of adjacent angle. Look at here. Common vertex is here O. Okay. Common arms is OD in this figure. And third, both angles are BOD and DOC opposite to each other. This angle BOD and this angle COD. Okay. Here another example for the same definition I have showed here. Look at, this is a straight line. Here the common vertex O, common arm OD. Okay, and these two angles are adjacent to each other. Okay, angle 1 is adjacent of angle 2 as well as angle 2 is adjacent of angle 1. But after addition of these two angles, it will be 180 degree. Okay, so in this figure, here COD and BOD are making adjacent angle, but sum of these two adjacent is 180 degree. So understood what is adjacent angle? So student, here in note I have written, it will be more clear for all of you. All linear pair of angles make adjacent angle. All linear pair of angles make adjacent angle, but all adjacent angle do not make linear pair of angle. कैसे? हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं. लुक एट हियर. फर्स्ट, ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मेक एडजेसेंट एंगल. ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है. एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बन गया तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हुआ. तो ये एडजेसेंट एक्स का वाई है एंगल, और एंगल वाई का एडजेसेंट एंगल एंगल एक्स है. तो ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल मेक एडजेसेंट एंगल. अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, बट ऑल एडजेसेंट एंगल डू नॉट मेक लीनियर पेयर ऑफ एंगल. क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये एडजेसेंट है तो दोनों का सम कितना हो रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑफ एंगल मेकिंग ऑल्सो एडजेसेंट एंगल, मैंने लिखा है यहाँ. अभी इस एग्जाम्पल में देखिए आप कि x का एडजेसेंट y है और y का एडजेसेंट x है, लेकिन इन दोनों एंगलों का सम 180 नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग linear pair of angle. Angle x plus angle y is not equal to 180 degree.
तो एडजेसेंट एंगल तो है बट नॉट मेकिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, so but all adjacent angle do not make linear pair of angle। तो इस तरह से आपको ये दो स्टेटमेंट जो मैंने दिया था वो क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टूड। हियर वंस अगेन आई हैव टेकन अ न्यू टर्म, लीनियर पेयर एक्ज्यूम और लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, और एक्ज्यूम क्या है मैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देयर इज नो नीड टू प्रूव। ठीक है, इसको शॉर्ट में LPA बोलते हैं। क्या है लीनियर पेयर ऑफ एक्ज्यूम? लुक एट हियर, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री then they are called a linear pair of angles। ठीक है, यदि एक रे जो है एक लाइन पर स्टैंड हो, जैसा कि मैं फिगर में यहाँ दिखाया हूँ, देखिए BC एक लाइन है और OA एक रे है जो BC पर स्टैंड है जिसका वर्टेक्स O है। ठीक है, तो इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन okay such that sum of two adjacent angle, here two are adjacent angle making 180 degree, then they are called linear pair of angles। okay, so here angle AOB plus angle AOC equal to 180 degree, AOB plus angle AOC will be 180 degree। Symbolically it will be angle x plus angle y is equal to 180 degree। इसी को हम लोग कहते हैं linear pair of angles। Next step you have to know which is very important for your geometrical problem। Here general step while proving theorem or related geometrical problem। जब हम लोग थ्योरम या इससे संबंधित ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कुछ स्टेप हम लोग को लिखना पड़ता है। वो क्या स्टेप होगा नेक्स्ट मैंने एरो में दिखाया है जो ग्राफिकल वे में है। यहाँ देखिए, फर्स्ट गिवन, जब आप सॉल्व करते हैं थ्योरम या ज्योमेट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम तो उसमें कुछ गिवन दिया हुआ रहता है, वो लिखिए पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव वो लिखना है या प्रूव दैट। ओके, थर्ड है कंस्ट्रक्शन इफ नीड, यदि आवश्यक है तभी हम लोग कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कोई थ्योरम या रिलेटेड प्रॉब्लम जो थ्योरम से होता है उसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है स्टेप प्रूफ। ओके, तो इस तरह से हम लोग जब भी थ्योरम या रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ थ्योरम सॉल्व करेंगे तो ये सभी स्टेप यूज करेंगे। हियर आई हैव टेकन फर्स्ट थ्योरम related to your topic lines and angles which is very important for all of you। look at here, theorem number 1, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal, you have to prove it। okay, this is the first theorem of your geometrical chapter, that is lines and angles। so look at here, here student given that if two lines, मैंने टू लाइंस लिया है, एक AB लिया है और एक CD लिया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पर। ओके, बिकॉज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से जो वर्टिकली अपोजिट बन रहा है उसको मैंने इंडिकेट किया है 1 2 3 4 से। 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 होगा और 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल
4 होगा, तो हमें यह प्रूव करना है कि 1 विल बी इक्वल टू 3 और 2 विल बी इक्वल टू 4. So let us see in next step how can you prove it. First of all, you have to use the first term given, जैसा कि मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूँ कि हम लोग इस तरह का यूज करेंगे. तो इसमें गिवन क्या है, 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है. ओके. अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, टू प्रूव. ओके. तो क्या हमें प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव, राइट डाउन हियर. फर्स्ट एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC. लुक एट हियर, BOD is equal to angle COD and second BOC equal to AOD. Here BOC is equal to AOD. यही दोनों हमें प्रूव करना है. Let us see. Here the next step will be proof. इसका आप क्या प्रमाण दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो वो प्रूफ में आएगा. ठीक है. First of all, look at here. Ray OB stand on a line CD. Look at here. This is the OB ray and this is standing on the line CD. Okay. Look at here. OB ray and this OB ray standing on the line CD. तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 एडजेसेंट एंगल और वो भी एक लाइन पर बन रहा है. तो लीनियर पेयर अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई LPA. सो यहाँ मैंने लिखा है, लुक एट हियर, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई LPA. ओके. अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि इफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल. सो बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन यहाँ देख रहे हैं कि OC रे जो है, OC रे लाइन AB पर स्टैंड है. ओके. तो फिर यहाँ से यहाँ तक का सम जो होगा मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल बाई LPA, लीनियर पेयर ऑफ एक्जूम भी लिख सकते हैं आप. तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. लुक एट हियर, आई हैव रिटन इन नेक्स्ट स्टेप. Again, ray OC stands on a line AB. Ray OC stands on a line AB. Therefore, angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree by LPA. This is the second. Look at here. 2 plus 3, 180 degree. On comparing first and second, we get here angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3, because here angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. In next step, angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. So right hand side equal, therefore left also will be equal. Okay. बिकॉज अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 कट जाएगा और फिर इस तरह से आएगा एक एक्सप्रेशन. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा. तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. यही हमें प्रूव करना था. मीन्स दैट एंगल 1 इज BOD इज इक्वल टू एंगल 3 इज AOC. लुक एट हियर, फर्स्ट में यही हमको प्रूव करना था, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC. BOD equal to AOC. Understood? Similarly,
सिमिलरली वी कैन राइट हियर एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी। जब इसी तरह का दूसरा भी प्रूव करना हो तो एक वर्ड यूज करते हैं सिमिलरली, दोबारा उसे प्रूव नहीं करना। ओके, अगर सेम ही टाइप का दूसरा भी प्रूव करना हो तो सिमिलरली वर्ड यूज करके उसे लिख दिया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड योर होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 6.1 of NCERT book. Okay.